Good evening, everyone. On behalf of Carbon, the Heritage Exploration Initiative, I, Shrishti Chen, welcome you to our special Carbon Venture, a journey into Delhi heritage, culture, and poetry, with two of our favorite Delhi Wala, Sheikh Mahmood and Shoaib Hashmi. Today, we will embark on a journey into the heart of Delhi, a city that breathes history and exudes culture. Although today it must be the pollution for everybody with an AQI somewhere over 400. Established in 2019 by Shan Sharma, Carbon Heritage has emerged as one of India's leading history collectives. Since its inception, Carbon's work towards breaking the stereotypes of academic discipline and keeping the public engaged in critical conversation about past, present, and future. The idea behind Carbon is to promote the knowledge of history among general public, inspiring them to be mystic and committed in his field, as well as to make people understand the importance of heritage and history. In response to the challenges of his COVID-19, Carbon emerged as a Bicon platform for critical conversation about our past, present, and future. Starting in April 2020, during the coronavirus pandemic, we have hosted more than 300 scholars on our online platform to talk about their research on history and related domain. 2 years ago, we institutionalized the Carbon Book Club Award. It is awarded annually to the best eligible non-fiction work around the history of the Indian subcontinent. In the opinion of jury, represent the best of the academy and promotes historical understanding about the public. The heartbeat of Carbon renews with a mission to make academic history inclusive, accessible, and engaging. Now I would request our chief guest to launch our newsletter. गेस्ट तो आप आप हैं चीफ गेस्ट कौन है ये I'll- हमारे साथ न्यूज़ लेटर मेरे पास तो है आपने दबा के रख दिया With this note, I request Ishan to welcome our speakers. गुड इवनिंग एवरीबॉडी 400 से ऊपर AQI होने के बाद भी आप लोग आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। चलिए 400 से कम है थोड़ा बहुत, पर फिर भी 20-25 सिगरेट तो हम पी रहे हैं और मैंने सोच लिया शायद शुरू कर ही देता हूँ अगर नेचर कह रहा है इतना। बट आज हमारे दो उस्ताद कारवान में हमने अपना उस्ताद मानते हैं, सोहेल हाशमी और सैफ महमूद साहब आपके सामने हैं और वो आज कई सारी बातें कहने वाले। मैं उनका लैपटॉप देख पा रहा हूँ, बड़ा खतरनाक तरीके से उन्होंने उस पर पेन चला के रखा है। ये तो पिटीशन है ना, कल बहस करनी पड़ेगी। तो आज we'll have a brilliant discussion, I'm very sure, and we started the journey in 2019. This is our, I think, 25th or 26th Carbon Better. We have done more than 400 lectures in the last 4 years. Many of them here at the IHC, so we are very thankful to the whole team at the Habitat Center who have done great service for us, because we are really always on a lookout for resources. So they have always supported the initiative. We have some bookmarks and some merchandises of Carbon that we just started. One of them is this status unplugged from WhatsApp University. So what we have been trying to do is to keep you away from the WhatsApp University. Without further ado, I think I would now request Shrishti to take the proceedings forward and introduce our guests. I'll meet you again to deliver the vote of thanks. वो भी शायद आजकल देना जरूरी हो गया है, तो वो भी हमने थोड़ा बहुत तैयार किया है, सुन लीजिएगा। तब तक कोई मत जाइएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। Now I take this opportunity to introduce today's speaker. Shoaib Hashmi,
Hashmi is a renowned writer, filmmaker, and a heritage activist. He has been at the forefront of preserving and sharing Delhi's heritage for over 2 decades. For over 2 decades, and his passion for the city's heritage has led him to conduct captivating heritage walks, unearthing forgotten stories and monuments that make Delhi's truly unique. He is also the founding trustee of Sahmat Safdar Hashmi Memorial Trust. Dr. Shaib Mahmood is an advocate of the Supreme Court of India and an expert in comparative constitutional law in South Asia, and has a dual identity as an advocate and history heritage buff with great knowledge of Urdu poetry. He is the author of Beloved Delhi, a Mughal city, and her greatest poets and our greatest poet. Thank you so much. Please use round of applause for our speakers. One thing I forgot to mention, there's also supposed to be a book launch of sorts in the end. तो एक और इंसेंटिव है आपके पास रुकने के लिए. बहुत खूबसूरत किताब आने वाली है, उसका नया कवर है, तो वो हम लॉन्च करेंगे टुवर्ड्स द एंड. तब तक आपने तो रुकना पड़ेगा. ओवर टू सैफ साहब. शुक्रिया बहुत बहुत ईशान. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर कमिंग दिस इवनिंग. एक अनवर जलालपुरी के चंद अशार हैं कि कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, अनगिनत इम्तिहान की दिल्ली. कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, अनगिनत इम्तिहान की दिल्ली. मकबरे भी नहीं सलामत अब, मकबरे भी नहीं सलामत अब, थी कभी आन बान की दिल्ली. और ख्वाब किस्सा ख्याल अफसाना, ख्वाब किस्सा ख्याल अफसाना, हाय उर्दू जबान की दिल्ली, अब बेजुबानी का हो गई है शिकार. इससे पहले यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है. बेजुबानी का हो गई है शिकार, असदुल्लाह खान की दिल्ली. ये वो दिल्ली है जिसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं. और हम ख्वाब और ख्याल और किस्सा और अफसाना और उर्दू ज़बान और असदुल्लाह खान, इन सब के बारे में बात करेंगे. तो मैं पहले सुहेल साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि इससे पहले इसका जो उन्होंने टाइटल रखा है साहब, वो हेरिटेज, दिल्लीज हेरिटेज कल्चर एंड पोइट्री. सो बिफोर वी टॉक ऑफ दिल्लीज कल्चर एंड पोइट्री, आई वुड लाइक टू आस्क सुहेल साहब टू बिगिन विद दिल्लीज हेरिटेज. तो थोड़ा सा हमको ये जरूर समझा दें कि शाहजहां ने जब शाहजहानाबाद बनाया तो उसका आर्किटेक्चर उस शहर का क्या था. एक जगह किला है, उसके चारों तरफ जो है वो अलग अलग गेट्स हैं, फिर एक बाजार है. इस बिकॉज unless we put the culture of Delhi in its geographical and architectural context, we will not understand what the poets of those days were doing. तो ये यहाँ से मेरे ख्याल से अगर बात शुरू की जाए तो उसके आगे फिर हम ज़रूर. और मैं इन शाहजहानाबाद से थोड़ा पहले से शुरू करना चाहूँगा. दिस इज़ अ कॉमनली हेल्ड बिलीव इन दिल्ली, एंड फॉर सम रीज़न इट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोपगेटेड that this is the site of 7 cities. Delhi is not the site of 7 cities. It is the site of 7 or maybe 8 capitals. But there are only 2 cities. There are only 2 cities, Mehrauli and Shahjahanabad. The others were mayor capitals. And we are sitting in one more mayor capital. They are not cities. Mehrauli grew into a city even after the capital was shifted because of the presence of a great Sufi or his memorial, Qutbuddin Bakhtiyar Kadi. And because of that, construction continued there. People kept on coming and settling down there. Shahjahanabad became a city because a fully developed urban culture was shifted from Agra to Delhi. And then over the next 300 and odd years, that culture developed. So, if you are looking for continuity of culture, of a lived tradition of poetry, of music, of architecture,
You see all that in Shahjahanabad. And all the others are just capitals. A collection of buildings does not make a city. And the best example of that is New Delhi. A city has to produce something. It has to have a working class. It has to have its libraries, its addas, its own music, its own language. New Delhi has none of these. And the only thing it produces are government reports. You can't call that production. So, Shahjahanabad became Shahjahanabad because it had all. And as Saif was saying, if we look at the city that Shah Jahan built, you will get some idea of what I am talking about. Let's take the gates first. Beginning with Delhi Darwaza. Now, Delhi Darwaza was not an entry into Delhi, into Shahjahanabad. This was an exit from Shahjahanabad to Delhi. It pointed to Mehrauli. And each gate of the city of Shahjahanabad pointed to a city, with the exception of 2 gates. I'll come to that. So after Delhi Darwaza, which pointed towards Delhi, and if you went inside and continued in that direction, you reached the Delhi Darwaza of the Red Fort, which looked towards the Delhi Darwaza of the city, which looked towards Delhi, Mehrauli. The next gate was Turkoman Darwaza. The only gate not named after a city, or one of the 2 gates not named after a city. This is named after a great Sufi, Shamsul Arifin Shah Turkoman Bayabani. And he is buried inside that gate. The grave outside claiming to be his is not his. This is some imposter. The actual grave is about half a kilometer inside. And then you had Ajmeri Darwaza, Kabuli Darwaza, Lahore Darwaza, Badra Darwaza, another gate not named after a city, but this was the drain of the filthy water of the city. And then you had Kashmiri Darwaza. So these were the gates pointing towards cities or parts of the subcontinent. And then you had the Nigambod Darwaza, and it wasn't where the present day Nigambod Darwaza is. It was very close to where the ISBT is. In the 1850 drawings, Nigambod Darwaza is there. So it is, the present location is a much later location. Then you had Bela Ghat Darwaza, Kela Ghat Darwaza, Khizr Darwaza or Pani Darwaza, Patthar Ghati Darwaza and Rajghat Darwaza. These were the gates that opened towards the river. Within these, and a 7-kilometer long wall was the city of Shahjahanabad. And the city was set up according to professions. Like all medieval cities grew all over. We are familiar, many of you would be familiar who have traveled to London, that there is a street of tailors. There is a street where all the dentists are. There is another street which has all the doctors. Similarly, all cities, all ancient and medieval cities developed like that. They were guild masters, experts in one field, their disciples, the suppliers of their raw material, and those who bought goods from them. So you had Suiwalan, Churiwalan, Kinari Bazaar, you had Gali Santarashan, Stonemason Street, Sirkiwalan, those who made the thatch. So you had localities like that. And the names are magical. There is a Mohalla Chabuk Sawaran.
इसकी बहुत सख्त जरूरत है आजकल. Yes. And there is a street of Surf Poshan, Gali Surf Poshan. So there were these. And then there were localities named after communities. Jatwada, where the Jats lived. As you enter from Delhi Darwaza, there is the Jatwada. बल्ली महारान का क्या? And Bali Maharan was where people belonging to one profession lived. Somebody who is very knowledgeable about Delhi and keeps upon writing books fairly regularly has translated that as the street of the cat killers. And I had the occasion to point out to him that if you go to any city which has a substantial Muslim population, you don't see dogs, you see cats. Muslims prefer not to keep, not Muslims like Saif and I, no, I'm talking of practicing Muslims, who don't keep pet dogs, they keep cats. And therefore, it's very unlikely that you had a profession called cat killers. These were people who took you across the river, the punters, because the Jamna was not a deep river. It's a mature river by the time it comes into the plains. It's a flat river. Most part of the year, you can walk across the river. You could, not now, who would enter it now. But you could walk across it. But if you had to carry heavy stuff across, you required a boat, and the punters took you across. The punters lived here, that's why it was Balli Maharan. So this, and amidst these were the poets, were the writers, and there were streets named after them. There is Gali Hakim Momin. There is, and Ghalib lived in Balli Maharan. Qasim Jan. Gali Qasim Jan, which is an also named offshoot after of Qasim. Gali Maharan, yeah, which is named after, जी. other, and there were gullies named after Hakims and by calligraphers and Hakims and people like that. So that was the city. And this is the city that we are going to be talking about, and the life of those people who we remember, continue to remember, and people who gave an extended life to this city. Ghalib, Momin, Zauq, Daag, and a plethora of others. ये जिस कल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी नुमाइंदगी करने वाले दो लोग यहाँ बिल्कुल पीछे खड़े हैं. उनसे मैं दरख्वास्त करूँ कि आगे आ जाए. दो सीटें तो हैं, एक तो अशोक माथुर साहब और उर्दू की शमा लंदन में रोशन रखने वाले परवेज आलम साहब खड़े हैं पीछे. या परवेज साहब क्या जगह है, और अशोक आप आइए ना, सामने आए. जी. तो ये आपने सुना आपसे सोहेल साहब से कि शहर जो है वो क्या था और कैसे बनाया गया था. औरंगजेब ruled from the Mughal throne in Shahjahanabad, in this Shahjahanabad, for almost 50 years till he died in 1707. लेकिन 1707 तक हो क्या गया था, that by now Shahjahanabad had become quite the center of art and literature, and it was home to some of the best Persian poets. और उनमें जो है आरजू थे, आबरू थे, हातिम थे, बेदिल थे. ये सब लोग थे उसके अंदर. लेकिन अब होता क्या है साहब कि उर्दू शायरी कहाँ से दिल्ली में आती है कि सन 1700 में अब तक ये था कि फारसी वो ज़बान थी जिसमें शायरी की जा रही थी. ये जिस ज़बान को हम लोग उर्दू कहते हैं, इसका जो भी प्रोसेसर था उस ज़माने में, रेख्ता या हिंदी या जो भी कह लीजिए आप उसको, that was not considered refined enough for poetry. तो उस ज़बान में शायरी कोई नहीं कर रहा था. सन 1700 के आसपास it is believed that Wali Muhammad Wali Dakkani, he comes to Delhi, and his language, or what is then called rekhta, or an assorted dialect, it's quite, it's rustic, it is not appropriate for poetry. लेकिन उससे होता ये है, his expression is so powerful
that he ends up setting the tone for what would be the Urdu ghazal later. तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां आंसू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला आंसू तो कहूंगा। तुझ लब, तेरे लब की जगह है तुझ लब की सिफत और लाले बदख्शां आंसू। आई विल कंपेयर योर लिप्स टू द रूबी ऑफ बदख्शां। जादू है तेरे नैन गजाला आंसू कहूंगा। और शेर सुनिए इसमें आप सुहेल साहब की यक नुक्ता तेरे, ऐसा कोई शेर आज कहीं नहीं सकता। यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं भेजा, on your face not a single dot, not a single blemish, yes, is additional or extra. यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़े कुरान सो कहूंगा। I'll compare it to a page of the Quran. ये इतना लिबरलिज्म था उस जमाने में। तो खैर बहरहाल होता ही है कि उसके बाद औरंगजेब एक इंटरप्शन जी, वो बाद में उसका जिक्र आएगा तो, लेकिन देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन गालिब एंड ज़ौक़, एंड ज़ौक़ हैड बीन afflicted with smallpox 7 times. So सब जान थे, बच गए। आमतौर पर लोग एक चेचक में मर जाते थे उस जमाने में, बस ज़ौक़ साहब बच गए। और अब ये जो दोनों में, दो उस्तादों में जो कॉन्फ्लिक्ट था, उनके शागिर्द जो थे वो इससे बहुत मजे लिया करते थे। तो उस पे किसी ने ज़ौक़ के बारे में, इट विल बी कंसिडर्ड पॉलिटिकली एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन वो कहा गया तो मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे पॉलिटिकली रॉन्ग होने की आदत है। हाँ, नहीं अब मैं इन रेट्रोस्पेक्ट पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता। तो वो कहा कि ए खाले रुखे यार तुझे खूब समझता, खाले रुखे यार तुझे खूब जो लिटिल ब्लेमिश ऑन द चीक, आई वुड हैव फिक्स्ड यू, पर छोड़ दिया हाफिज कुरान समझकर। और मिर्जा इब्राहिम ज़ौक़ हाफिज कुरान थे। तो एक तो वो है, हाफिज कुरान बच्चा जब खूबसूरत बच्चा होता है तो उसके गाल पे काला टीका लगा देते हैं टू प्रोटेक्ट हिम। सो द ब्लेमिश वाज टू प्रोटेक्ट द फेस, एंड हाफिज कुरान somebody who has memorized and somebody who has blemishes on his face. तो ये 3 लेयर का शेर गालिब के किसी शागिर्द ने कह दिया। मैं ये बता रहा था कि सो आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, ये कैसे होता है, ये जो पूरा एक कल्चर है इसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद एक के बाद एक 3 सक्सेसर्स उनके आते हैं और पता ही नहीं चलता कब आए कब गए, बल्कि उसमें से एक तो सिर्फ दिल्ली में दफन होने के लिए आते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के साथ में। फिर जब फर्रुख सियर, व्हेन ही टेक्स ओवर द रेन्स ऑफ द मुगल एम्पायर, बाय दैट टाइम द एम्पायर इज सो फ्रैगमेंटेड कि हर आदमी को जो है अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनानी है, हमको अपना अलग प्रोविंस चाहिए, हम छोटे मोटे राजा महाराजा सब हैं। तो फर्रुख सियर को बता दिया गया, इसमें देखिए अगर कोई सिमिलैरिटी हो प्रेजेंट से तो मैं माफी चाहता हूँ, इट इज नॉट इंटेंशनल। फर्रुख सियर को बता दिया गया कि एक ही तरीका है अगर आपको अपनी बचा के रखना है अपना किंगडम, तो और वो ये है टू क्रश डिसेंट ऑफ ऑल काइंड्स। सो उस जमाने में देयर वाज अ पोएट कॉल्ड जटल्ली, मीर जाफर जटल्ली। ये लफ्ज जटल्ली जो है ये उन्होंने खुद कॉइन किया था। ये जटल होता है बकवास का, बकवास, नॉनसेंस। जटल्ली समबडी हु स्प्यूज नॉनसेंस। तो अब उन्होंने किया क्या फर्रुख सियर ने, he first demonetized the currency and then he minted a new coin. और उस ये असली बात है सर, मैं बता रहा हूँ। On the new coin there was a Persian couplet inscribed. और Persian couplet ये था कि ये मैं लिख के लाया हूँ कि सिक्का ज़द अज़ फज़्ल हक़ बरसीम ज़र, बादशाह है बहरोबर फर्रुख सियर। By the grace of God he has minted coins of silver and gold. The emperor of the earth and oceans, फर्रुख सियर। अब ये जटल्ली साहब को तो मिल गया साहब एक बहाना जटल बकने का, तो उन्होंने इसकी एक पैरोडी लिख डाली, और पैरोडी ये है कि सिक्का जद बर गंदुमो मोठो मटर, बादशाह तस्मकश फर्रुख सियर। क्या मतलब हुआ इसका? He has minted coins even of wheat and lentils and peas। ये उनको भी बेच खाया उसने।
उनको भी बेच खाया है उसने। ये दिस एम्परर हुज फेस इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन, फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर ने, और ये आपको सिर्फ एक वाहिद एग्जाम्पल मिलेगा इस अदर देन सरमद, जहां पे किसी को सजाए मौत का हुक्म हुआ है, एंड द ओनली एग्जाम्पल जहां किसी को सजाए मौत का हुक्म इसलिए हुआ है कि उसने ऐसा कुछ लिखा, डिसेंटिंग या रेवोल्यूशनरी या रेजिस्टेंस की शायरी कही। ही वाज हैंग्ड अंटिल डेथ, The first martyr of freedom of expression. first martyr of freedom. Seriously. And in this political milieu was born the first classical Urdu poet of India, ख्वाजा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो यहाँ से जो है वो उर्दू की कहानी शुरू होती है। और फिर आप देखिए, अगर आप 18th सेंचुरी देखते हैं तो एक के बाद एक बहुत कम वक्फे में एक के बाद एक सौदा है, ख्वाजा मीर दर्द है, और मीर तकी मीर, खुदाए सुखन, द गॉड ऑफ पोइट्री, ख्वाजा मीर तकी मीर। और फिर उसके बाद वाली सेंचुरी में अगर आप देखिए तो मोमिन, आपने ज़ौक़ का जिक्र किया, ज़ौक़, आजुर्दा, बहादुर शाह जफर, अगर उनको आप शायर मान लीजिए तो, और फिर खुद मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। ये है वो। ये सौदा का जिक्र किया जी, सौदा के 2 शेर आप सुन लीजिए। हाँ। और आप उसमें, एंड दिस इज अर्ली डेज ऑफ उर्दू, फिक्रे माश इश्क़े बुता याद रफ्तागा, वाह वाह, रोजगार की, नौकरी की, सर्च ऑफ a method through which you have a regular income, the love of those who are as stone-hearted as idols, and the memory of the days gone. इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे, सही बात। फिक्रे माश इश्क़े बुता याद रफ्तागां, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। और एक which is so appropriate for the time that we are living in, सौदा जो बेखबर है वही यहाँ करे है ऐश। सौदा जो बेखबर है वही यहाँ करे है ऐश, मुश्किल बहुत है उनको जो रखते हैं आगही। वाह वाह वाह। Those who are aware, those who look around, who keep their eyes open, they are in serious trouble. Happy are those who are totally unaware. एक और शेर सौदा का जो है बहुत अप्रोप्रिएट है आजकल की। जो शेर ये है कि इस जमाने का जो देखा तो है उल्टा इंसाफ। इस जमाने का जो देखा तो है उल्टा इंसाफ। गुर्ग आजाद हैं और होशरुबा पहरे में, वुल्व्स आर फ्री एंड शेफर्ड्स आर अंडर गॉड। आप देखिए ये 200 साल के बाद फैज़ अहमद फैज़ ने भी यही कहा उसके बाद कि है अहले दिल के लिए अब वो नज़्म क्या है, बस तो खुशाद कि सन को खुश मुक़य्यद है और सादा आज़ाद। अरे मैं सौदा की एक चीज़ आपको छोटी सी सुना दूं ताकि उनका आपको जो है जहन, उनकी जहनियत क्या थी और उनका विट किस तरह का था वो उसका एक फ्लेवर मिल जाए आपको, एंड देन वील मूव ऑन। सौदा के पास एक ये सौदा बताते हैं कि साहब एक बुजुर्ग थे और उन बुजुर्ग के पास एक नौजवान गए और उन्होंने उनसे कहा कि हुजूर मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। उन्होंने रख लिया उनको, कुछ दिनों, कुछ महीनों, 1 साल उनकी खिदमत की और फिर उनसे कहा कि जनाब हुजूर अगर आपके पास नुस्खे कीमिया हो तो मुझे दे दीजिए, दी फेबल्ड एलिक्सर, नुस्खे कीमिया। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि है मेरे पास और मैं आपको दे भी सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? उनका शर्त ये है, माफ कीजिएगा इसको मैं बंद कर तो गया था अपने हिसाब से, माइक थोड़ा ऊपर कर दीजिए। उनका शर्त ये है कि जब आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिल में बंदर का खतरा नहीं आना चाहिए। साहब ये बड़ी अजीब सी शर्त है कि बंदर का खतरा नहीं आना चाहिए, क्या मतलब है इस बात का? जाहिर है जब भी उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये उसको कोई ले सकता है क्या यहाँ से? मुझसे इधर आइए, दोनों ले जाइए और इन्हें सबसे पास वाले कुएं में फेंक दीजिए। बड़ा दूर जाना पड़ेगा मेहरौली, बहुत दूर जाना पड़ेगा, मेहरौली जाना दिल्ली शाहजहानाबाद जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बहरहाल कहा कि भाई बंदर का खतरा नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये अजीब सी शर्त है, जाहिर है जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको ध्यान आएगा कि बड़ी अजीब सी शर्त रखी थी और वो खतरा आ जाएगा, बंदर का खतरा आ जाएगा। तो नज़्म ये है, इसका एक बंद पढ़ रहा हूँ मैं कि कहा जाए है एक मुहव्वस कहानी,
कहा जाए है एक महवस का हाल कि रखता था नित कीमिया का ख्याल, कि सब कर के बीच अपने कयास गया एक वो मर्द कामिल के पास, रहा उसकी खिदमत में वो चंद साल, किया मौके पे फिर आखिर सवाल कि अगर नुस्खे कीमिया याद हो तो बंदे को भी अपने इरशाद। कहा अगर यही है तेरा मुद्दा तो देता हूं तुझको, तू जा और ला, ये अज्जा हैं इसके, ये लेकर बना, मगर इसमें एक शर्त है दरमियान। ये नुस्खा तू जिस वक्त लेकर बनाए, कबू दिल में बंदर का खतरा ना आए। कहा अब तुम ये बात मुमकिन नहीं, जो खतरा हो दिल में वो जाए कहीं। न समझा गरज उसके रमजो नुकात कि पर्दे में थी मर्द कामिल की बात, कि अगर दिल को खतरे के काबू किया तो फिर हेज है नुस्खे कीमिया। क्या बात, क्या कह रहे हैं? इफ यू लेट फियर कॉन्कर योर हार्ट, खतरे के काबू में, अगर दिल को खतरे के काबू में किया, इफ यू लेट फियर कॉन्कर योर हार्ट, देन इवन द फेबल्ड एलेक्सर, इवन द नुस्खे कीमिया इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये है साहब सौदा। और सौदा के बारे में मीर ने ये कहा था, मीर से एक बार पूछा गया, तो मीर को अपनी शायरी पे साहब बहुत जबरदस्त जो है वो गुरूर था कि मैं ही हूं बस और कोई है नहीं। तो मीर ने से पूछा गया कि आजकल के शायर कौन है, तो उन्होंने कहा कि सौदा, पहले सौदा और फिर खाकसार। तो उनका और मीर सोस, तो उन्होंने कहा क्या वो भी शायर है? तो जिन साहब ने पूछा था उन्होंने कहा कि आखिर वो नवाब आसिफुद्दौला के उस्ताद हैं। बोले चलिए फिर 2 और 3 चौथाई रख लीजिए। तो ये वो सौदा है साहब। और अब सुहेल साहब, सौदा जो है वो काबुली दरवाजे में कहा जाता है कि काबुली दरवाजा वो इलाका था जहाँ सौदा रहते थे, और सौदा के कई सालों के बाद वो वही इलाका था जहाँ ज़ौक़ भी रहते थे। और ज़ौक़ जब अपने घर से निकल के और किले की तरफ जा रहे होते थे तो वो काबुली दरवाजे पे पहले सलाम करते थे और फिर सर झुकाते थे या सलाम करते थे और फिर वो वहाँ जाते थे टू शो रिस्पेक्ट फॉर सौदा। ये है कहाँ काबुली दरवाजा? है, हाँ काबुली दरवाजा है। और वो जो 1850 का नक्शा हमको दिल्ली का मिलता है जी, उसमें हमको नजर आता है जो ये नहर थी जो दिल्ली में लाई गई थी, जमुना का पानी दिल्ली में लाया गया था 130 किलोमीटर दूर से, और वो काबुली दरवाजे से दिल्ली में दाखिल होता था। और उसके बराबर एक मस्जिद थी जो शाहजहां की जो एक बेगम थी जो वहाँ से थी पंजाब से, सरहिंद की जो बेगम थी उसकी बनाई हुई मस्जिद वहाँ पर थी। और ये अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि ज़ौक़ वहाँ रहते हैं, क्योंकि इट फिट्स इन, क्योंकि ज़ौक़ का मज़ार जो नबी करीम के इलाके में है वो यहाँ से उस इलाके में एंट्री यहाँ से थी काबुली दरवाजे से। और काबुली दरवाजे के बाहर बाग थे और उन बागों के मालिक एक बहुत मशहूर कश्मीरी कौल पंडितों का ख़ानदान था जो वहाँ रहा करता था। और क्योंकि नहर उनके बाग से होके गुजरती थी तो वो कौल से नेहरू हो गए। दैट इज हाउ द नेहरूज बिकेम नेहरूज, अदरवाइज दे वर कौल्स। तो वो काबुली दरवाजे के बाहर रहते थे। मेरे ख्याल से उस जमाने का जी, तो वहां से ये आती थी नहर और फिर वो चांदनी चौक से होती हुई जाती थी। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ज़ौक़ भी वहाँ रहते थे और सौदा भी वहाँ रहते थे। अभी ज़ौक़ का हम लोग आपको दिखाएंगे मज़ार, अभी इस पे मैं दिखाऊंगा आपको कुछ तस्वीरें। अनंत रायना हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तस्वीरें खींची हैं, वील जस्ट शो यू द पिक्चर्स। और अच्छा, इससे पहले कि हम मीर पे आए, मीर वाज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दैट एरा। अब वैसे तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मीर गालिब से भी बड़े शायर थे, लेकिन बहरहाल इस डिबेट में तो सिर्फ असातिज़ा और एक्सपर्ट्स ही पढ़ सकते हैं। सुहेल साहब तो एक्सपर्ट हैं पर मैं नहीं, उसकी मैं डिबेट नहीं कर सकता। तो लेकिन इस बीच में सुहेल साहब मीर दर्द भी तो थे। जी जी जी। और मीर दर्द के मैं 4 शेर लाया। अच्छा, he was a Sufi, actually, हाँ a सूफी थे जी। तो हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, हाँ। दिल ही नहीं रहा है कि कुछ आरजू करें। वाह वाह। और इसी गजल का एक और शेर है जो कुफ्र के हदों में शामिल हो जाता बड़ी आसानी से।
वो और गालिब ने भी इस मजमून पे शेर लिखा है, तरदामनी। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, वाह वाह दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। वाह। तो शेख कह रहा है तुम शराब खाने से धुत होके लौटे हो, तुम्हारे सारे लिबास के ऊपर सब यू आर सोकिंग इन अल्कोहल। तो कह रहे हैं हमारे इस तरदामनी का जिक्र मत करो, इसे नचोड़ देंगे तो इससे फरिश्ते वुजू करेंगे। इतना पाक है। इतना पाक है ये। और सरता, ये तो कमाल का शेर है। जी जी जी। सरता कदम जबान है यूं शम्मा गो की हम, जैसे शमा होती है, हम सर से पैर तक जबान है, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करें। वाह 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 वाह। और है अपनी ये सलाह के सब जाहिदान बहुत शहर, अच्छा शेर। है अपनी ये सलाह के सब जाहिदान शहर, ए दर्द आके बैते दस्ते सुबू करें, सुबू जिसमें शराब रखी जाती है। They should swear allegiance to the wine, जिसमें शराब सुबू। Bayat is very interesting. The formal act in Sufi tradition, you know, of swearing allegiance to your teacher is To come and kiss their hand. जब डिसाइपल जाके उनका हाथ चूमता है और वो फॉर्मली उनका डिसाइपल बन जाता है, इसको बैत करना है। बैत करना एक्चुअली अगर आप देखें तो इट मीन्स टू मेक अ पैक्ट, टू मेक अ पैक्ट। तो ये क्या कह रहे हैं कि है अपनी ये सलाह, क्या आपने शेर पढ़ा था कि सब जाहिदान शहर, शहर के जितने भी जाहिद हैं मौलाना, वो जाके इसके ऊपर, इस सुबू के ऊपर बैत करें। जोर की बात करना भूल जाएंगे। साहब ये बताइए कि उर्दू पोइट्री के बारे में अक्सर ये समझा जाता है कि साहब इसके अंदर जो है सब जाम व मीना और मोहब्बत और विसाल और फिराक और ये सब है। ये सब तो है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप क्लासिकल उर्दू पोइट्री हमारी देखिए, मीर, गालिब, एक्चुअली सौदा, ऑल्सो सौदा, तो आपको ह्यूमनिज्म की एक ऐसी लहर दौड़ती हुई उसमें दिखाई देगी कि मेरे ख्याल से उसके पैरेलल्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो उर्दू पोइट्री में जो ह्यूमनिज्म है उसके बारे में कुछ बात की है। देखिए, मैं समझता हूँ कि लाइक ऑल ग्रेट लैंग्वेजेस, बट आई वुड ऑल्सो अंडरस्कोर दिस, एग्रीइंग विद सैफ, दैट more than any other language, or the whatever little access I have through translations, the area of human endeavor and human existence, उसके ऊपर जितना काम उर्दू शायरी में हुआ है और जितना लिखा गया है वो और लैंग्वेजेस में हमको नहीं मिलता है। और the more you emphasize or foreground the human endeavor, you are also constantly cutting, reducing the discourse of the divine. और ये constant है। Now, whether it is, probably it has come from the Persian tradition, and then it became the major fulcrum around which Urdu poetry revolves, is questioning the divine, is questioning ritual, and questioning intolerance of organized religion. ये बुनियादी है उर्दू पोइट्री के अंदर, and it is perhaps because of that इसमें एक underlying stream है throughout of protest, resistance. So, and which would perhaps, you know, not only beginning with Mir and Zauq and these poets, it continues through Faiz and continues as the main thrust of Urdu poetry even today. तो ये मेरा ख्याल है, ये उसकी वो वर्चुअली बुनियादी उसका वो है
जिसके चारों तरफ उर्दू शायरी का पूरा जो पेड़ है, तनावर दरख्त वो फैलता है, उसकी बुनियाद ये रेजिस्टेंस और लव फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। तो ये जैसे मीर के यहाँ आपको इस तरह के शेर मिल जाएंगे। मीर के दिनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कश्ता खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, ऐसे शेर आपको और जगह मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल से सौदा जो है, एक उर्दू में ये पर्शियन ट्रेडिशन जो है कि आप अल्लाह मियाँ के बारे में, खुदा के बारे में जो चाहे कहें, लेकिन रसूल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। भाई बाखुदा दीवाना बाशुबा मोहम्मद होशियार, बट सौदा ने इसको भी तोड़ दिया। सौदा का एक शेर है कि आप लोग जानते हैं that the prophet's wife was also his employer, शेर ये है कि बाजार मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, कि मोहब्बत के बाजार में नबूवत का क्या मोल है। भाई होंगे आप नबी अपने घर में, बाजार मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, एक जन ने लिया मोल नबी चंद दिरहम से। क्या बात, ये सौदा का शेर है। अब बहुत लोगों का ख्याल है कि हज़रत इस्माइल के लिए, लेकिन अगर उनके लिए भी है तो भी है, तो किसी नबी के लिए है। ये आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो अपना दायरा है इसका, टॉलरेंस का, इंड्योरेंस का, और हर चीज़ पर तुम्हारी रिलीजियस फीलिंग्स हट जाती है। तो ये इतना हम लोग कम किए चले जा रहे हैं। आप जरा अगर मीर के पास का कोई एग्जाम्पल अगर आप और दें इस तरह का, या तो यही जो शेर में पढ़ रहा था अभी, इसमें आप शेर देखिए क्या कहेंगे, तो उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी है। हाँ उसमें शेर ऐसे ऐसे नाहक हम मजबूरों पर यूं तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर यूं तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। बिकॉज इसके पीछे what is the idea? It is believed, and almost every religion underlines this, that nothing moves without the will of God. एक पत्ता भी नहीं हिलता खुदा की मर्जी के बाद। अगर ये सही है तो हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? मतलब जो फॉरबिडन फ्रूट एडम ने खाया, वो तो God had ordained it from the beginning, even before He created Adam, that I'll create Adam and he will defy me and he'll eat that fruit and I'll throw him out of heaven. ये सब कुछ तो आपने पहले से तय किया हुआ था। तो where is my agency? Why are you punishing me? You see? So it is this kind of questioning. और ये तो शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैं खाने में, किसी गजल का है। शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैं खाने में, कुर्ता खुरका जुब्बा टोपी मस्ती में ही नाम किया। शराब पी के सब बांट के आ गया, फिर नाउ इज हाइडिंग इन अ मॉस्क। अच्छा इसमें साहब ये भी है, मीर क्या आपको ये हो रहा है कि मीर का ये हुआ कि जब वो आगरा से दिल्ली आते हैं, मीर भी आगरा से दिल्ली आए और गालिब भी आगरा से दिल्ली आए, और दोनों तकरीबन एक ही उम्र के थे जब आए। तो गालिब was 13, मीर was 11 when he came to Delhi. एक फर्क है, गालिब की शादी हो चुकी थी और मीर इश्क में नाकाम होके आए थे। They started rather early in life. ये आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि गालिब की शादी हो चुकी थी पर वो इसको नाकाम नहीं हुए थे। तो शादी तो कर चुके थे ना, 13 साल की उम्र में शादी कर चुके थे और मीर इश्क में नाकाम हो बताओ आए थे। और मीर जब दिल्ली आते हैं उससे लेके और जब तक वो दिल्ली में रहते हैं तब तक he was under the patronage of one or the other royal or aristocrat, राजा टोडरमल और फला फला। और फिर उसके बाद पहले नादिर शाह का और फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के इन्वेशंस होते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली अब कोई पेट्रोन बचता ही नहीं है साहब। तो मीर का ये हो जाता है हाल कि वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाके बैठ जाते हैं और ही मेक्स अ बार्टर सिस्टम, क्रिएट्स अ बार्टर सिस्टम फॉर हिमसेल्फ। अगर आपको खाना चाहिए तो आपने ढाबे वाले की शान में एक शेर कह दिया, खाना मिल गया आपको। अगर आपको दवा चाहिए तो आपने जो है वो फार्मासिस्ट की शान में एक शेर कह दिया आपको। ये कब तक चलता? तो फाइनली ही हैड टू माइग्रेट टू लखनऊ। तो फिर वो लेट 1700s में जो है मीर दिल्ली को छोड़ के कि अब तो चलते हैं बुद्ध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, और वो दिल्ली को छोड़ के चले जाते हैं लखनऊ। और वहाँ नवाब आसिफउद्दौला की कोर्ट में उनकी रसाई होती है और फिर वहाँ वो काफ़ी दूर, लेकिन आसिफउद्दौला से भी साथ उनका ये जो एक
ये था ना साहब कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये वहां भी चलता है। क्या चलता है, किस्सा आपको छोटा सुनाता हूँ, देन वी विल मूव टू गालिब। और वो ये कि एक बार वो नवाब साहब के यहाँ से ही उनके पैसे आते थे, उसी पे उनका काम चलता था मीर का। तो पहले तो ये हुआ कि कुछ लोग उनके पास आए फ्रॉम द रॉयल कोर्ट, उन्होंने उनसे कहा कि साहब आप बैठे रहते, बात हो रही थी, उन्होंने कहा कुछ सुनाई मीर साहब। तो मीर तकल्लुफ कर रहे थे, कुछ नहीं सुना रहे थे। तो जब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप कुछ सुनाइए, तो मीर ने कहा कि साहब मैं सुना तो दूंगा, लेकिन आपको मेरी जबान समझ में नहीं आएगी। तो भाई क्यों नहीं समझ में आएगी, हम तो अच्छे अच्छे फारसी के असातिज़ा को समझ लेते हैं, रूमी और खाकानी और हाफिज, उनका समझ लेते होंगे, लेकिन मेरी जबान समझने के लिए आपको उस जबान की तमीज होना जरूरी है जो उर्दू, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में बोली जाती है, और आप नवाबजादों को वो तमीज नहीं है। ये था साहब लेवल ऑफ इश्क। और नवाब साहब के पास गए सुबह सुबह, नवाब साहब मछली से खेल रहे थे, कहते मीर साहब कैसे मिजाज है, कुछ ताज़ा कलाम सुनाइए। मीर साहब ने सुनाना शुरू किया। तो नवाब साहब ने उर्दू में, देखिए कल्चर की बात हो रही है, तो ट्रेडिशन ये भी है कि अगर शायर पढ़ रहा हो तो आप मिसरा उठाएंगे, दिले नादा तुझे क्या हुआ क्या है, गालिब ने पढ़ा, और वहां से आवाज आएगी दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तालियां नहीं बजती आज की तरह। तो भरा, तो उन्होंने मिसरा नहीं उठाया, मीर ने एक शेर पढ़ा, उन्होंने मिसरा नहीं उठाया, मीर चुप हो गए। तो नवाब साहब ने कहा मीर साहब आप इरशाद फरमाएं। तो उनका हुजूर तवज्जो दें, तो मैं हाजिर करूं शेर। तो उन्होंने कहा, नवाब साहब ने, हर अच्छा शेर मेरी तवज्जो का मुस्तहिक होगा। तो वो खफा हो गया साहब, मीर साहब की मतलब ऐसा भी मेरा कोई शेर है जो अच्छा नहीं है और ये बताएंगे मुझे नवाब साहब कि अच्छा है कि नहीं। उन्होंने आना बंद कर दिया। तो 3 हफ्ते के बाद नवाब साहब जुमे की नमाज पढ़ के हाथी पे सवार चले आ रहे थे कहीं से। उन्होंने देखा कि मीर कहीं बैठे हैं कोने में गली में, तो अपने लोगों से कहा कि वहां ले चलो, वहां ले गए। क्योंकि ये हाथी पे सवार थे इसलिए ऊंचा बोलना पड़ा इनको ताकि मीर को सुनाई दे। उन्होंने क्यों मीर साहब बहुत दिनों से तशरीफ नहीं लाए। तो वहीं चाय पीते पीते बगैर उनकी तरफ देखे हुए बैठे बैठे बोले, हमारे यहाँ शरीफ लोग सड़कों पे ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करते। अब सुनिए साहब, असल बात ये है, आज की तारीख में तो आपने किसी एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहकर दिखा दिया। आपने रूलिंग नवाब, प्रिसाइडिंग नवाब को लखनऊ में सड़क पे ये कह दिया, द स्टाइपेंड दैट वाज बीइंग पेड टू मीर फ्रॉम द नवाब्स ट्रेजरी डिड नॉट स्टॉप। देते रहे वो स्टाइपेंड। ये जो है इस कदर टॉलरेंस थी, और पता था इन लोगों को, जो रूलर्स थे उस जमाने के, अरिस्टोक्रेट्स थे, नवाबीन, उनको ये बात पता थी कि शोरा का यही काम है, शायरों का यही काम है क्रिटिसाइज करना, हमको जो है बांध के उसमें रखना कि हम जो है ज्यादा हद से गुजर ना जाए। तो सुहेल साहब इस गालिब पे आने से पहले ये इसी सिलसिले को जरा आगे बढ़ाते हुए मीर ने कहा, गुफ्तगू रेफ्ते में हमसे न कर, ये हमारी गुफ्तगू रेफ्ते में हमसे न कर, ये हमारी जबान है प्यारे। ये हमारी यू नो। और मीर तो कुछ शहर अशोक अगर आपके पास हो, क्योंकि देखिए जो आप शहर अशोक पहले बता दीजिए कि है क्या। कमिंग टू दैट जी, वो शहर अशोक एक इज द लेमेंटेशन ऑफ अ सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी, एंड मीर सॉ इट several times, because when he came to Delhi, within couple of years of his coming to Delhi, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, और फिर अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, और बार बार, and he was in love with this city, and he saw उसका destruction। तो उन्होंने एक ये सिंफ शायरी की उनके साथ मंसूब की जाती है, बाद में तो वो बहुत लिखी गई, which is the lamentation of a city, शहर अशोक कहलाता है वो। तो अब इसमें देखिए किस किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है। शाह आलम was ruling in Delhi, and then Delhi was overrun by the रोहेला पठान्स, और अब्दुल कादिर रोहेला ने शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया, and then Shah Alam was blinded with hot pins। उस पे मीर का शेर सुनिए, शाहां के कोहले जवाहर थी खाके पा जिनकी। कोहले जवाहर पिसे हुए ज्वेल्स,
उनके पैरों की जो मिट्टी थी, इट वॉज लाइक पाउडर्ड ज्वेल्स। उन्हीं की आंख में फिरती सलाइयां देखी। वाह। दिल्ली, ये दिल्ली के जो बर्बादी है उसका जो जिक्र बार बार उनकी शायरी में आता है। जिस जा के खसो खाक के अब ढेर लगे हैं, या हमने इन्हीं आंखों से देखी हैं बहारें। वाह वाह वाह। सुना जाता है शहरे इश्क के गिर्द मज़ारे ही मज़ारे हो गई हैं। सो ये बार बार एक खराबा हुआ जहानाबाद वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। सो ये शायर अशोक मीर, और मीर की शायरी में जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले, wherever the word दिल comes, he is not talking only of his heart, he is also talking of Delhi. दिल और दिल्ली दोनों अगर हैं खराब, मीर का शेर है जी। दिल और दिल्ली दोनों अगर हैं खराब, पर कुछ लुत्फ इस उजड़े घर में भी हैं। मीर का शेर। ये एक मीर का एक तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी। तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी। इस थोड़ी सी रात में हमने क्या क्या स्वांग रचा है। स्वांग रचा है। देखिए आप कैसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। उस जमाने में दिल्ली में इस तरह का एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ये भी क्लैरिफाई करते हैं हम लोग जरा कि सिर्फ शहर अशोक वगैरह ही नहीं था दिल्ली में, और ये जो ह्यूमर, बहुत सारे इस तरह की ट्रेजेक्टरीज आपको मिलेंगी, ह्यूमर विट वगैरह। मुसफ़ी का शेर है, मुसफ़ी मीर के जमाने के शायर थे। मुसफ़ी का शेर है कि बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, क्या शहर मोहब्बत में हज्जाम नहीं होता। या वो एक मीर का शेर सुन लीजिए। दाढ़ी तेरी ए वाइज मस्जिद ही में मुंडवाता, अफसोस कि मैं पास में हज्जाम नहीं रखता। वाह वाह। या वो क्या है कि वो जालिम गज़बी होती हैं ये दिल्ली वाली, ए मुसफ़ी। तो इनसे यहाँ डॉक्टर उज़्मा अज़हर बैठी हैं, तो वो दिल्ली वाली भी हैं और शहर अशोक की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं। तो आपके नजर एक शेर ये है कि ए मुसफ़ी तू उनसे मोहब्बत ना कीजियो, जालिम गज़बी होती हैं ये दिल्ली वाली। अगर हम लोग ये बता दें, ईशान साहब आज से अभी से 10 मिनट पहले बता रहे थे कि 30 मिनट रह गए हैं और हमको अभी एक प्रेजेंटेशन वो उसका फोटोज भी दिखानी है, तो गालिब के बारे में कुछ बात कर ली जाए। गालिब के बारे में मेरे ख्याल है बुनियादी बात एक ही है, उससे बड़ा शायर नहीं, उससे बड़ा शायर नहीं। और मीर, इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आपको किसी भी इरा के, किसी भी पीरियड के दो ग्रेट आर्टिस्ट को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब वो मल्लिकार्जुन मंसूर ज्यादा बड़े हैं या कुमार गंधर्व, दोनों ग्रेट हैं, आप इनको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो इस तरह की कंपैरिजन दे आर अ लिटिल ओडियस, बट दोनों फिनोमिनल हैं एंड बोथ ऑफ देम आर इन मेनी वेज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन टाइम। गालिब का व्हाट गिव्स distinguishes him above whole lot of other people, जो उसका रेंज है। एंड आई कीप ऑन वंडरिंग कि उसने क्या क्या पढ़ा था और कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। उसकी शायरी में ग्रीक माइथोलॉजी है और जितनी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उनकी माइथोलॉजी के रेफरेंसेस उसकी शायरी में आते हैं। ही वॉज ऑब्वियसली फेमिलियर विद देम। और एक मैं आपको शेर सुना देता हूं जस्ट टू इलस्ट्रेट दिस, दैट वी कम टू द मेन थीम ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। थी बिना तुम नाश गर्दूं दिल को पर्दे में नेहा, शब को उनके जी में क्या आया कि उड़ियां हो गई। अब इस शेर को समझने के लिए कहानी समझना जरूरी है। There were 8 sisters
exceedingly beautiful, or they were cursed. If a man as much as touches any one of them, she will die. So they used to live concealed in a fort. उनकी खूबसूरती के किससे दूर दूर तक फैले हुए थे, किसी ने उनको देखा नहीं. There was this prince who, listening to the description, fell in love with the youngest, and he started on her search. और वो घूमता रहा, बड़ी मुश्किल से उस वहां पहुंचा जहां शहर में वो रहती थी. और फिर किसी से पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा इस किले में है. हाउ कैन आई सी देम, इसे देखने का कोई तरीका नहीं. बहुत रोया गिड़गिड़ाया. तो उन्होंने कहा कि वो रात को किले से निकलती हैं एंड दे गो टू टेक अ बाथ इन द रिवर. सो यू हाइड इन द बुलरशेस एंड यू कैन सी देम बट डोंट टच देम. वो बैठ गया वहां जाके. शाम को वो आई. They went to take their bath. As they were returning, he couldn't resist himself. He extended his hand and touched the youngest. She fell and died. And the other 7 picked her up and flew into the heavens. The 7 sisters. That's the constellation. The constellation. Yeah. And now अब आप शेर सुनिए. थी बिनातुन नाश गर्दू. The sisters around the body. बिनातुन नाश. डेड बॉडी के चारों तरफ जो बहन जो सिस्टर्स थी वो दिन के पर्दे में छुपी रहती हैं. तो उनके जहन में क्या बात आई that they reveal themselves at night. But they reveal themselves only at night. You know, now unless you know this story, you can't understand this. So, but this is just one level of this thing. The kind of questions he raises. Yeah. And that is what really makes him phenomenally great. There is a belief, और उसको कितने वो ह्यूमर से टैकल करता है. There is a belief among Muslims that the moment a child is born, 2 angels are appointed. One sits on the right shoulder, noting down the good deeds. One sits on the left shoulder, noting down the bad deeds. This law was framed by a right-handed male. Now, Like most other laws. yes. So, when the person dies, सीधा हाथ बाहर ही उनके good deed, bad deeds नोट किए जाते हैं, बैलेंस बनता है, फिर तय होता है कि आप whether you're going to heaven or hell. Now, Ghalib says, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक. आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था. Only on the evidence of the angels you are punishing me. But did you ask a human being? Now he is questioning the entire system of Islamic jurisprudence. Because the angels were from day one against human beings. When God created Adam and he assembled all the angels and told them to bow before him, Mephistopheles, who was the senior most of the angels, he said, "Kyun? मैं तो आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना, मैं नहीं झुकूंगा. I have not bowed down in front of this man fashioned out of clay." God told him, "Get off, never show me your face again." Now what Ghalib is saying is, this was a thought that would have occurred to every angel. From day one they are biased against us. That is one. The other thing that he is saying is that angels have no desires. They have no hunger. They have no family. They have no filial love. मैं क्या समझेंगे? They cannot understand why I stole a piece of bread, why I told a lie. I have to protect my children. I know all these things. Now the judiciary lives in a different world of values. They cannot understand why have I done anything. How are you punishing me on that basis? Now, to raise these kind of questions, this is not only. इस पे एक बहुत अच्छा शेर और भी है. जी, इसी जी. बात पे जो आप हाँ, कह हाँ, रहे हैं. हाँ. And here, I think this is, I mean, I look at everything from, you know, a very legalistic, so to say, perspective. That's my training. लेकिन एक बड़ा क्लासिक शेर है गालिब का, वो जो मशहूर गजल है गालिब की, दायम पड़ा हुआ
तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी की पत्थर नहीं हूं, उसमें एक शेर आता है, I think it's a classic couplet where on the one hand he boldly demands the right to be treated with dignity because after all he's only infidel, he's a mere sinner and not an infidel. And on the other hand he also very skillfully sums up the doctrine of proportionality in criminal law or criminology. और शेर क्या है कि हद चाहिए सजा में उक़ूबत के वास्ते. वाह 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 वाह. There ought to be a limit to punishment for an offense. हद सा चाहिए सजा में उक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ. तो या ये एक और वो which is done in a jocular fashion. जाहिर है कि घबरा के ना भागेंगे नकीरैन. मुनकर नकीर, ये दो फरिश्ते, I know they will not run away. जाहिर है कि घबरा के ना भागेंगे नकीरैन, हाँ मुंह से मगर बादए दोशीना की बू आए. When I'm inside the grave, वो फरिश्ते मेरे साथ वहां पे बैठे होंगे ना. अगर मैं शराब पी के मरूंगा तो they can't leave me, but they'll be trapped with me. खबर में भी उन्हें बदबू तो आएगी शराब. वो दिलावर फिगार एक बहुत मशहूर वो थे सटायरिस्ट, और उनकी बहुत लंबी नज्म है गालिब पे, और उसमें इस तरह की वो आते हैं बन की वो, कल एक नाक़िद गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कल एक नाक़िद गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कलाम हज़रत गालिब का सबब क्या है, मुझे बताओ कि दीवाने हज़रत गालिब कलाम पाक है, इंजील है कि गीता है. शहर कराची में भी एक साहब है, कलाम उनका भी गालिब से मिलता जुलता है, तो फिर ये गालिबी मरहूम ही की बरसी क्यों? मुझे बताओ कि उनमें खुसूसियत क्या है. फिर वो पहले बताते हैं कि गालिब का जो है कितना प्रोपेगेंडा है और ये उस तरह की चीज़ें. एंड देन ही एंड्स विद सेइंग कि फिर बताते हैं गालिब कितना बड़ा शायर है, और वो नज़म ख़त्म इस पे होती है कि पहुंच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है. तो वाकई मेरे ख्याल से उनका दिमाग जो था. एक शेर गालिब का आप ही ने मुझे बताया था सुहेल साहब, तो दीवाने गालिब में नहीं मुझे मिला. फिर मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की, तो जो नुस्खा है हमीदिया है, नुस्खा हमीदिया में वो शेर है, और शेर ये है, ज़रा ये आप समझा दीजिए, देन वील गो टुवर्ड्स द पिक्चर्स. कि लूं वाम वक्त खुफ्ता से एक ख्वाब खुश वले, गालिब ये खौफ है कि कहाँ से अदा करूं. बख्त खुफ्ता सोई हुई किस्मत. तो my fate is in deep slumber. If I were to borrow a good dream from that fate which is in deep slumber, I'll have to return it sometime. How will I return? Because my fate does not have a good dream. लूं वाम बख्ते खुफ्ता से एक ख्वाब खुश भले, लेकिन ये खौफ है कि कहाँ से अदा करूं. हाउ डू आई रीपे द लोन? क्योंकि मेरी तो किस्मत सोई हुई है, उसमें अच्छा ख्वाब हो ही नहीं सकता. तो अगर वो निकाल के कहीं से मुझे दे भी दे, मैं वापस कैसे करूंगा? वापस तो उसी से लेना पड़ेगा ना. यू नो, नहीं, और फलसफा तो ऐसा है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है तबाह हो जाना, इस तरह की चीज़ है. या ऐसे तो मैं ख्याल से अच्छा एक शेर और है गालिब का, उस पर मैं गालिब खत्म कर दूंगा साहब. नहीं कर सकता. उस पर गालिब ने खुद गालिब खत्म कर दिया. और वो शेर ये है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है. वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाढ़ो ब्राह्मण. आप क्या कह रहे हैं? तो ये आप ही समझा दीजिए. देखिए, बेसिकली जो बात कही जा रही है वो ये कि जो एसेंस ऑफ फेथ है वो ये है दैट यू आर ट्रू टू योर बिलीफ. तो वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है. अगर आपका वादा पक्का है, वही आपके फेथ की बुनियाद होगी. तो because the story is that Kaaba was filled with idols.
So Ghalib is saying कि faith की बुनियाद तो वो थी ना, उनको निकाल के फेंक दिया। पर ये जो आइडल वर्शिपर्स का फेथ है, उसकी शुरुआत है। तो if you are true to your faith, you should be buried there. And now Brahmins are not buried. That is a popular perception, with the exception of Andhra Brahmins I have learned recently, who are buried. But so that is what he is saying. But there is another in the same theme, where he says कि हम वहाँ नहीं तो काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। जो वहाँ नहीं वो वहाँ नहीं तो वहाँ से निकाले हुए तो हैं। तो ये जो एब्सेंस ऑफ रिलेशन भी तो एक रिश्ता है। उनको वहाँ से निकाल दिया आपने, पर निकाले तो वहीं से गए थे। तो इन बुतों की ये जो दी आइडल्स, इनका एक पुराना रिश्ता है काबे से। अब आज वहाँ नहीं है ये, पर वहाँ से निकाले गए थे। So the layers in Ghalib and how he opens these spaces for us, that I think is absolutely remarkable. And I don't know there are too many other poets who have that capacity. उस गालिब के 1857 में या तो जो शोहरा थे दिल्ली में वो उनका कत्ल हो गया था या लोग छोड़ के चले गए थे। Only two poets of the so-called Delhi school that survived 1857 were Ghalib, who died in 1869 in Delhi, and Dagh, who had moved from here to Rampur and thereafter from there to Hyderabad. And he came to Delhi in 1904 for the coronation, and then died in 1905 in Hyderabad. तो हम आपको ज़रा उस ज़माने की जो दिल्ली थी और उसका अब क्या हाल है वो थोड़ी सी दिखाते हैं। और मैं अनंत रायना साहब से दरख्वास्त करूँगा, उन्होंने मेरी किताब के लिए बहुत अच्छी तस्वीरें खींची, उसमें से कुछ तस्वीरें यहाँ हमारे पास आप आ जाइए सर। अरे इब्राहिम साहब एक कुर्सी दे दीजिए। यहाँ है ठीक, आप समझिए। ये घटा मस्जिद है जिसको जीनतुल मसाजिद कहा जाता है, और ये अभी भी जो है आपको आसफ अली रोड पे मिल जाएगी। ये वो मस्जिद है जहाँ आरजू बैठ के दर्स दिया करते थे, और पीपल इंक्लूडिंग सौदा एंड मीर सैट हियर नेक्स्ट टू आरजू, खाना आरजू, और यहाँ उनका दर्स सुनते थे। मेरा भी एक रिश्ता एक मस्जिद से जी, अरे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, मेरे बंदे एक कमीना हम साया है खुदा। 1857 1858 में सोहेल साहब का रिश्ता मस्जिद से एक, मैं आप सुन लीजिए कैसा रिश्ता। मजाक कर रहे हैं। कश्मीरी कटरा एक हुआ करता था, जहां आज भंडारी होम्योपैथिक है दरियागंज के बाहर। बता दिया। तो उसको 1858 में डिमोलिश किया गया था। माय एंसेस्टर्स यूज्ड टू लिव देयर एंड माय ग्रेट ग्रैंडफादर मूव फ्रॉम देयर एंड ही स्टार्टेड लिविंग इन घटा मस्जिद, और यहाँ वो बच्चों को पढ़ाया करते थे बिफोर हिज चिल्ड्रन मूव्ड इनटू कुचाशेला। तो ये मस्जिद औरंगजेब की बेटी की बनाई हुई है, जीनतुल निसा की। एंड आफ्टर द ब्रिटिश मूव्ड इनसाइड द रेड फोर्ट, दिस वाज कन्वर्टेड इनटू अ बेकरी फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये साहब ख्वाजा मीर दर्द की दरगाह है ना, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में बताएंगे गए कहाँ थे हम लोग देखने के लिए और क्या हाल था इसका। एक तो बहुत सरप्राइजिंग बात हम दोनों की भी, हम टहलते थे पुरानी दिल्ली में घूमते हुए जगह। इट वाज सो सरप्राइजिंग दैट दीज पोएट्स दैट वी कंसिडर ग्रेट, इनकी जो ये जैसे इनकी दरगाह है या ज़ौक़ का जो मज़ार है, वो किसी को पता ही नहीं था कहाँ पे क्या है। वो एक ऐसी कोई बस्ती में से घुसे थे, उसकी तस्वीरें भी हैं आगे। ये देखिए साहब, बस्ती मीर दर्द वेलफेयर सोसाइटी, नाम उन्हीं का है। बबलू प्रधान। ये ख्वाजा मीर दर्द की जो दरगाह है ये है कहाँ? ये जो आप सुहेल साहब ने कहा था उसकी लोकेशन बता दीजिए। जो what used to be the urban hospital and is now
लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल और उसके पीछे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, इन दोनों के बीच में एक बस्ती है जो 64 खंबा कहलाती है, बिकॉज it has grown around a structure which has 64 pillars, which is believed to be the 7th mosque built by the Prime Minister of Firoz Tughlaq. The remains of that mosque now have a graveyard around it, और वहाँ बहुत सारे कबाड़ी और ये लोग रहते हैं, रक्षा वाले हैं बहुत सारे, ये वहाँ की बस्ती है। और उस बस्ती में ख्वाजा मीर दर्द, बिकॉज दिल्ली की जो पुरानी ग्रेवयार्ड्स हैं, एक 64 खंबा की ग्रेवयार्ड है और एक इंडियन एक्सप्रेस के पीछे की ग्रेवयार्ड है, तो ये दो दिल्ली के पुराने ग्रेवयार्ड्स हैं। यहाँ पे आप तो अभी यहाँ- भी अगर मेन जो वो है रोड नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल और एमसीडी का जो दफ्तर है उससे बिल्कुल पहले बीच में एक लेफ्ट को गली जा रही है, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ दरगाह, ये ख्वाजा मीर दर्द बस्ती ख्वाजा मीर दर्द। अच्छा साहब वहाँ चले जाइए, आप वहाँ पूछिए ख्वाजा मीर दर्द दरगाह है, बताएंगे आपको दरगाह है। वहाँ किसी को ये नहीं मालूम है कि ख्वाजा मीर दर्द किसी शायर का नाम, बिल्कुल किसी को नहीं मालूम। वो समझते हैं कोई बुजुर्ग है, वो दरगाह में यहाँ मज़ार उनका है, यहाँ दफन है वो। ये और द रोड दैट लीड्स टू द दरगाह इट्स फुल ऑफ मीट शॉप्स और किराने की दुकान और मक्खियाँ और इस किस्म की चीज़। तो साहब ये गालिब का एक किस्सा ये है कि दिल्ली कॉलेज जो था उस ज़माने में, उसमें एक फ़ारसी के उस्ताद की ज़रूरत थी और मोमिन से को वो पोजीशन ऑफर की गई। मोमिन रिफ्यूज दैट पोजीशन, लेकिन उन्होंने टॉमसन जो उसके हेड थे, इंस्टीट्यूशनल हेड थे, उनसे ये कहा कि देखो मिर्ज़ा नौशाह को ज़रूरत है पैसों की, और मिर्ज़ा नौशाह से बेहतर फ़ारसी का उस्ताद कौन मिलेगा आपको, मिर्ज़ा गालिब से बेहतर, तो आप उनको ये पोजीशन ऑफर कीजिए, लेकिन देखिए बताइएगा मत कि मैंने कहा है, वरना वो कभी कबूल नहीं करेंगे। मिर्ज़ा नौशाह को ये पोजीशन ऑफर की गई और वो एक पालकी में सवार बैठ के और दिल्ली कॉलेज के इस गेट पर पहुंचे और पालकी उतारी गई। अब मिर्ज़ा नौशाह इंतजार करते रहे कि टॉमसन साहब बाहर आएंगे उनको रिसीव करने के लिए। उन्होंने अंदर रुकता भिजवाया कि साहब कहो, उनसे बताओ कि मिर्ज़ा गालिब आए हैं। उन्होंने कहा कि साहब बहुत अच्छा आए हैं, लेकिन मेरे घर तो नहीं आए, मेरे घर आए होते। और वो गालिब के बहुत मददार थे टॉमसन साहब, और उनके घर गालिब जाते थे तो वो बाहर खड़े होते थे उनको रिसीव करने के लिए। उन्होंने कहा आए हैं, लेकिन आज टुडे ही हैज कम एज अ कैंडिडेट फॉर अ पोजीशन इन द कॉलेज, तो मैं प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ, तो वो आए अंदर। तो गालिब वहीं से वापस चले गए ये कह के कि मैं समझता था सरकारी मुलाजमत जो है वो मेरी इज्जत पे और बढ़ावा लाएगी, या बजाय इसके कि जो बची कुछ इज्जत है वो भी खत्म हो जाए, ये कह के वहाँ से वापस चले गए। इस पर गालिब का एक शेर भी है कि क्या फिराया दर काबा गरबाना हुआ, उल्टे फिराए बंदगी में भी वो आजाद और खुद भी हैं कि हम उल्टे फिराए दरे काबा अगरवाना हुआ। कि हम आए हैं हज करने, तो अल्लाह मियाँ को मक्के का दरवाजा खुला रखना चाहिए। हम तो वहां से ही वापस चले आएंगे, दरवाजा बंद है, फिर बता रहे हैं हम आए नहीं, ऐसा नहीं होगा। दरवाजा खोलो तो हम आते हैं। ये है कहाँ सुहेल साहब, बता दीजिए कि इसकी लोकेशन। ये अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट दरवाजे की साइड से निकलें एंड यू बिगिन मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज नाउ नोन एज स्वामी श्रद्धानंद मार्ग, उस तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड पे एक सड़क जाती है which goes across the railway lines. So immediately after that is the Delhi College. You enter and that is the original building of the Delhi College. मैं सिर्फ 2 तस्वीरें और दिखाऊंगा, बाकी को स्किप करके क्योंकि वक्त वो हो रहा है। एक्सेल्सियर सिनेमा आनंद, ये ना ये इंटरेस्टिंग फोटो इसलिए कि ये इन गालिब के लिए भी जरूरी है, और ये इंडिया में जो सिंगल सिनेमा थिएटर्स का हाल है वो भी इससे, जब हम ये खींचने गए थे तो ये सिनेमा चल रहा था, आपको दिख रही है ये पोस्टर, और हम अब आप जाएंगे तो सामने उसके ठेले लगे हुए, ये बंद हो गया, बिल्कुल अबैंडन्ड है। एंड इट्स रिमार्केबल कि कितना हम हर साल जाते हैं और हर साल यहाँ की शक्ल बदलते हैं। हकीम एहसानुल्लाह खां की हवेली की बैठक थी और यहाँ मुशायरे हुआ करते थे एक जमाने में, जिन मुशायरों में मिर्ज़ा गालिब भी गए हैं और मोमिन भी गए हैं और ज़ौक़ भी गए हैं। और ये किया हमने गालिब के साथ।
Best tribute to Alif Wali. Kebab corner. जी हाँ। अरे सर ये आखिरी में तस्वीर दिखा के ना लास्ट अनंत टू डिस्क्राइब की ये है क्या ये ज़ौक़ का ये रास्ता है जो जाता है ज़ौक़ के मज़ार को और ये ज़ौक़ का मज़ार है ये आपको बताएंगे हमने कैसे ढूंढा और उसके बाद हम आपसे कुछ सवाल But you can see the ASI signboard there. हाँ। This is a protected monument, and anybody interfering with this is going to be jailed, or words to that effect. हम लोग बेसिकली हम गए पहाड़गंज रिक्शा में बैठे और फिर हमने ढूंढना शुरू किया पूछते किसी को नहीं पता था ना ज़ौक़ कौन है कि मज़ार किसकी बात चल रही है कुछ नहीं पता था फिर एक हमारे आर्टिकल ढूंढा जिसमें इस जगह की तस्वीर थी वो आर्टिकल ये था कि इनकी मज़ार पे पब्लिक टॉयलेट बनाए गए थे और किसी एक्टिविस्ट ने केस फाइल किया था कि वो हटाए जाए उन पे प्रॉपर कुछ बिल्डिंग बनाई जाए हम वो रिक्शे में जाते जाते पहुंचे एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था जिसके पीछे एक गली में घुसे और हम यहाँ पहुंचे लॉक था क्योंकि वहां कोई जाता नहीं है तो वहां का जो गार्ड है वो आता भी नहीं है कि कौन देखने आएगा तो फिर ये दूसरी जो तस्वीर है वो वहीं के उसी रास्ते की आप देख लीजिए क्या कबाड़ पड़ा हुआ है साइड में ऐसे तो ये एंड यू नो द डिस्कशन वी हैड सैफ एंड आई वाज सच अ पॉइंटेड वन वी सेड ज़ौक़ वाज द कॉड पोएट ऑफ बहादुर शाह जफर और उनकी मज़ार का ये हाल है तो अगर आप किसी के लिए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो आपको भुला दिया जाएगा चाहे आप कोई भी हो And just meters away from there, he literally used to, you know, rule the city of Delhi. ज़ौक़. और ये आखिरी तस्वीर साहब, ये किला मोहल्ला है आपका. वेलकम टू मैजिशियन करण. तो ये किया है हमने थी कभी आन बान की दिल्ली. हुजूर. ये मेरी गुजारिश है कि कोई उठे ना क्योंकि अब मेरी बात आई है मुझे कि सुन लें जिगर थोड़ा थाम के बैठो मेरी बारी. और समय हमारे पास कम बचा है तो हम सवाल नहीं लेंगे इस समय आप बाहर सबसे मिल सकते हैं तस्वीरें खिंचाइए सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं मैं भी बहुत सुंदर लग रहा हूँ आज तस्वीरें खिंचाइए ऑटोग्राफ लीजिए और जो लेना है आपने हाँ और हमारा कार्ड भी बाहर है आप कार्ड भी ले सकते हैं अभी हम चलते थोड़ा जरूरत का जो काम है आई वुड लाइक टू इनवाइट रवि सिंह द चीफ एडिटर ऑफ स्पीकिंग टाइगर बुक्स एंड Satyanand Nirupam, editor of Rajkamal Prakashan, to finally inaugurate the book, the revised edition of Saif Sahab's Beloved Delhi, a Mughal city and her greatest poets. तस्वीरें जरूर लीजिए और तस्वीरें लें तो कार्बन डाइऑक्साइड को टैग जरूर करें मैं दो बातें ऐसे कर दूँ आप तशरीफ लाएं और मैं एक आधा मिनट में लूँगा सिर्फ आधा ही मिनट किताब तो बनी लिखी आपने अब देखिए ऐसा है कि दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन द फर्स्ट एडिशन केम इन 2018 इट वाज पब्लिश्ड बाय स्पीकिंग टाइगर ये लोग बहुत दिनों से ये जो है वादा कर रहे हैं आज ये साहब खड़े साथ में कि हम इसका हिंदी में तर्जुमा करेंगे किया गया नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि करेंगे बहरहाल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय रिव्यूअर्स द बुक हैज बीन लॉन्च्ड एट ऑलमोस्ट एवरी लिटरेचर फेस्टिवल इन इंडिया and in New York, in London, in Dubai, in Pakistan, at least 3 or 4 literature festivals. It is a part of the reading list at the universities of Oxford, Cambridge, London, and at least 4 Ivy League universities. और तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसको वहाँ तक पहुँचाया. मैं ख़ास तौर पे 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनंत रायना का क्योंकि ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सब इन्हीं की हैं और इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो सुहेल आपके सामने है. The second revised edition has some new pictures also by Anand, but it has a new cover and it has a postscript that I have written. उसमें मैंने कुछ गुस्ताखियाँ की हैं और सबसे ज़्यादा शुक्रिया रवि सिंह साहब का कि आपने उन गुस्ताखियों को बर्दाश्त किया और मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में आज ऐसा कोई और पब्लिशर है जो वो छापूंगा जो मैंने आप लिखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. And I would like to also, and I said this in my postscript that you know, the second edition, actually I myself had a resurrection after the last book was published. And there are some people sitting here, my closest of friends, without who I would not have been standing here with the second edition or without. And I would like to especially thank Meeta, Uzma, and Anjali Raina, Adila, और Jonah sitting here. और जाहिर है कि आप लोग सब हैं तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया.
आप तशरीफ लें। ये सब मुझे नहीं पता, पब्लिशर आप लोगों ने क्यों पब्लिश किया आपने? बस नहीं, वो क्या खरीदे इसे और क्या करें? कितनी खूबसूरत किताब। But really, it was just such a pleasure working on this. 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी मुझे याद है रात को 1:30 2 बजे हमारे SMS एक्सचेंज हुआ करते थे। Really, thank you. हाँ भैया इसको सबको एवरीबडी होल्ड करो। आ जाए तस्वीरें इनके पास कैमरे हैं। हाँ हाँ थैंक यू। अच्छा देखें, अभी मेरा वोट ऑफ टाइम शुरू हो रहा है, तो जरा थोड़ा सा थम जाए। I would like to just say, the first edition of this book was launched by the former Vice President Hamid Ansari Sahab, and I'll just read a citation of sorts by one of our best historians on Indian history, Catherine Butler Schofield. Saif Mahmood's groundbreaking book is the best and most accurate recent source for the greatest Urdu poets of the 18th and 19th century. It is steeped in his lifetime of literary connoisseurship, बहुत कठिन शब्द है, मुझे माफ करें, rigorous scholarship and impeccable poetical craft. Most remarkable for me was his creative risk-taking in the form of biography, mingling contemporary cityscape and personal memoir with vivid life writing and exquisite English translations of some of these poets' most poignant verses. कितनी अच्छी English, about themselves and their relationships with their beloved city Delhi. So आप लोग जरूर इस किताब को खरीदें. There are some copies of the book available outside on some discount. I believe Ravi Sahab might be able to. थोड़ा बहुत डिस्काउंट है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी है. साइन करवाने का भी मौका है। साइन कराइए, तस्वीरें लीजिए. I would like to thank Sohail Sahab, my उस्ताद, and कारवान इनके बिना नहीं शुरू होता. He was the biggest inspiration for me and my team. He led the हम लोगों ने first. आपको अभी इसके लिए माफ नहीं किया। He led the first caravan walk on 16th September 2018, and since then we have been running 2019 sorry, we have been running caravan and सैफ साहब हमारे साथ हैं जो जिनकी किताब हमने अब लॉन्च कर दी है. इसके आगे बोलना शायद रवि साहब ने पैसे नहीं भेजे तो मैं इतना नहीं बोल सकूंगा, लेकिन I hope that I won't use his service as an advocate. In the nation that we live in today, I might land up somewhere. Very soon. But till last बैठक we used to ask for donations, but this time we have stopped taking any kind of donations. There are caravan merchandise that you can buy. तो कुछ खरीदिए, कुछ थोड़े बहुत पैसे दीजिए ताकि हमारा कारवान चलता रहे. We do not associate with any university, any organization of sorts. It's a collective. It's an independent students collective. We are students from different universities trying to make history accessible to a lot of people in this nation because आज public history की बहुत ज़रूरत है. So अगर आपने तस्वीरें ली हैं, कारवान हेरिटेज Instagram पर है, आजकल बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है. उधर मेरी रील भी आप देख लीजिएगा, डांस करते हुए एक रील है. और कारवान मर्चेंडाइज में अभी हमने हुडी भी लॉन्च की, अनप्लग्ड फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. तो वो भी आप बाहर प्री ऑर्डर कर सकते हैं. आई वुड लाइक टू थैंक माई टीम, सृष्टि जैन, who started the introduction and started the event, and Vaishu, Vanshika, Mahima and all the others whom I am forgetting right now क्योंकि मैं भी थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ. बाकी जितने दोस्त आ जाए बहुत शुक्रिया. And special thanks to Shadab Sahab and Renu and Kanika team India Habitat Center जिन्होंने गुलमोहर हॉल हमारे लिए खाली किया और हमें जगह दी क्योंकि इससे पहले सरकारी कार्यक्रम चल रहा था तो बड़ा मुश्किल होता है सरकारें हटाना.